Analytical chemistry or instrumentation. Paper number 1, Fundamental of Analytical Chemistry, Module Role of Analytical Chemistry. EPG Pathshala, Principal Investigator, Dr. Nutan Kaushik, Senior Fellow, The Energy and Resources Institute, TRI, New Delhi. Co-Principal Investigator, Dr. Muhammad Amir, Professor of Pharmaceutical Chemistry, Jamia Hamdard University, New Delhi. Paper Coordinator Professor Raju Jain, Professor of Chemistry, Jivaji University, Gwalior. Content Writer Professor Raju Jain, Professor of Chemistry, Jivaji University, Gwalior. Content Reviewer Dr. Nimisha Jadon, Assistant Professor, Jivaji University, Gwalior. Subject name Analytical Chemistry. Paper name Fundamental Analytical Chemistry. Module name or title Role of Analytical Chemistry. Module 1, Role of Analytical Chemistry. Introduction. Analytical chemistry is an old as chemistry. Analytical chemistry उतना ही पुराना है जितना chemistry. Analytical chemistry act as a foundation for other branches of chemistry. Analytical chemistry जो है दूसरे chemistry के branches के जैसा ही एक foundation subject है. In fact, the science of chemistry came into existence as a result of human inquisitiveness to understand the nature of an extraordinary variety of matter that surround him, and this knowledge was obtained by analyzing different type of material. ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का एक पार्ट है. केमिस्ट्री जो एक साइंस है वो एग्जिस्ट हुआ ह्यूमन क्यूरोसिटी की वजह से. कौन सा क्यूरोसिटी? ये समझने के लिए कि जितने भी मैटर्स या ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग है उसका नेचर कैसा है. ठीक है, तो वो अलग अलग मटेरियल को एनालाइज करने के लिए ये केमिस्ट्री का नॉलेज ऑब्टेन किया है. A complex material on analysis can give rise to a number of new and simpler constituents. कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जब एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे नए और सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट देंगे. Each of the constituent can be further analyzed, and if this process is continued, a stage will come when a constituent will not give anything new. Such a constituent is called an element. तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अगर आगे आगे एनालाइज करेंगे कंटिन्यू प्रोसेस में तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कुछ नया कुछ देगा नहीं. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में रहता है जो मैटर का फाउंडेशनल यूनिट है. तो एलिमेंट्स जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको उसके आगे एनालाइज नहीं कर सकते, उसके आगे फर्दर स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है. Thus, the concept of an element as a substance which cannot be broken down into something simpler by ordinary chemical method arose from analytical data on different substance. तो एलिमेंट का कंसेप्ट जो है एज ए सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन नहीं होता है किसी सिंपलर फॉर्म में ऑर्डिनरी केमिकल मेथड की वजह से, जिसकी वजह से एनालिटिकल डेटा आता है chemical substance पे. The construction of a chemical balance provides a quantitative aspects of chemical analysis. chemical balance का construction provide करता है chemical analysis के aspects को. With this development, the study of analytical chemistry stimulated quantitative approach to various problem of chemistry. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टडी डेवलप करने की वजह से बहुत सारे केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिव अप्रोच में स्टडी कर पाए. Chemical reaction were studied on the basis of qualitative and also quantitative change that occur. Chemical reaction study होता है किसके बेसिस पे?
क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस में। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि किसी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, और क्वांटिटेटिव का मतलब ये है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कितना अमाउंट में है वो चेक करना। सो केमिकल रिएक्शन बेस्ड है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस में। दिस रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ सेवरल न्यू कंपाउंड्स एंड 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से बहुत सारे नए नए कंपोनेंट्स का डिस्कवरी हुआ और 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी फॉर्म हुआ। In an attempt to theoretically explain this law, Dalton developed the atomic theory, which played a tremendous role in developing chemistry into quantitative experience and was mainly preparative in nature, centered around empirical synthetic method। तो ये थियोटिकली इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी डेवलप किया, जहाँ पे इस थ्योरी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया केमिस्ट्री को डेवलप करने में क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंस के लिए। और उसकी वजह से बहुत सारे सिंथेटिक मेथड्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस कर पाए, फॉर्मुलेट कर पाए। The induction of analytical approach brought about a revolution transformation from magic alchemy to a quantitative scientific chemistry। तो ये एनालिटिकल अप्रोच की जो शुरुआत है उसका एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ पे लोग इसको जादुई चीज़ मानते थे या रहस्यमय कोई जादू समझते थे। वहाँ से लेकर क्वांटिटेटिव साइंटिफिक केमिस्ट्री तक पहुँच गया, जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट को जान सकते हैं। स्टेप इन एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए स्टेप्स क्या क्या है? स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी obtained either by preparing it from some simple constituent or by breaking it chemically into smaller and simpler units and then identifying them। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन हो पाया जब उसको प्रिपेयर किया सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट से, या फिर ब्रेक डाउन किया केमिकली छोटे छोटे सिंपलर यूनिट्स में उनको आइडेंटिफाई करने में। The former approach involves synthesis of the compound while the later is called chemical analysis। तो उसके भी आगे क्या अप्रोच किया कि कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं, कंपाउंड को हम बना सकते हैं। वेल लेटर इज टर्म एज केमिकल एनालिसिस। फिर इसको दूसरा नाम दिया वो है केमिकल एनालिसिस, मतलब केमिकल को हम एनालाइज कर सकते हैं, कितना क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं कि केमिकल जो है कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। Inorganic and organic analysis. Chemical analysis is broadly classified as inorganic or organic depending upon the nature of the material under examinations। Inorganic और organic analysis, chemical analysis जो broadly classify होता है inorganic या फिर organic में, जो depend होता है material का nature के ऊपर जो examination के अंदर है। Elemental analysis deal with detection and determination of various elements present in a compound। एलिमेंटल एनालिसिस जो है डील करता है बहुत सारे एलिमेंट का डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस इन्वॉल्व the determination of certain grouping of atoms such as carboxyl group COOH or hydroxyl group OH in an organic material। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व है? कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है डिटरमाइन करने के लिए इन्वॉल्व है। किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप? जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें COOH एटम है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिसमें OH एटम है ऑर्गेनिक मटेरियल में। मेजर माइन्यूट एंड ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। A major constituent is one which amount is 1% or more of the sample material।
मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जिसका अमाउंट 1% या 1% से ज़्यादा होता है सैम्पल मटेरियल से. A minor constituent present in quantitative smaller than 0.01% is called trace constituents. तो trace constituent क्या होता है? माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके सैम्पल मटेरियल से 0.01% काफ़ी छोटा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कंप्लीट एंड पार्शियल एनालिसिस. Chemical analysis is said to be complete when it involves the determination of all other components detected qualitatively in the samples. सिंपल पार्शियल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस को कंप्लीट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सभी कंपोनेंट का डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व रहता है जो सैंपल को क्वालिटेटिवली डिटेक्ट करता है. द एनालिसिस इज पार्शियल व्हेन इट्स एम एट डिटरमाइनिंग ओनली वन or a few of the component of the sample such as determination of copper in a copper ore. तो एनालिसिस पार्शियली होता है जहाँ पे एम होता है एक या एक से थोड़े कंपोनेंट जो है सैंपल को उसको डिटरमाइन करने के लिए जो जिसमें मतलब कॉपर और से कॉपर को डिटरमाइन करते हैं कि कितना कॉपर जो है प्रेजेंट है कॉपर और में उसको डिटरमाइन करने के लिए पार्शियल एनालिसिस होता है. क्लासिकल केमिकल एनालिसिस. Classical chemical analysis. Quantitative chemical analysis started with the application of technique of gravimetric procedure. तो क्लासिकल केमिकल एनालिसिस में क्या है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होता है जहाँ पे ये ग्राविमेट्रिक प्रोसीजर टेक्निक का एप्लीकेशन यूज़ करता है. इन अ ग्राविमेट्रिक मेजरमेंट or known volume of sample solution is treated with excess of suitable reagent which quantitatively precipitate the desired constituent present in the sample solution. ग्राविमेट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है सैम्पल सोल्यूशन का नॉन वॉल्यूम को ट्रीट किया जाता है सूटेबल रिएजेंट से एक्सेस में जो क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट होता है और डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है सैम्पल सोल्यूशन में. The precipitate which is of known concentration is filtered, washed, dried and weighed. तो जो precipitate मिलता है उसका नॉन कॉन्सेंट्रेशन को फिल्टर करते वॉश करते ड्राई करते और वे करते हैं. Knowing the weight of precipitate, the amount of the desired constituent in the test solution is calculated. तो प्रेसिपिटेट के वे को जानकर डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अमाउंट जो है टेस्ट सोल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल an excess of dilute sulfuric acid is added to a given solution containing barium ion. For example, dilute sulfuric acid को एक्सेस में लेते हैं ऐसे सोल्यूशन में जिसमें बेरियम आयन होता है. The precipitate of barium sulfate form is filtered, washed, dried and weighed. बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है फिल्टर होता है वॉश होता है ड्राई होता है वे होता है. फ्रॉम द वे ऑफ बेरियम सल्फेट द क्वांटिटी ऑफ बेरियम इन द गिवन सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड. बेरियम सल्फेट को वे करके बेरियम का क्वांटिटी जो है सोल्यूशन में कैलकुलेट होता है. बिकॉज such determination based on measurement of weight. These are referred to as gravimetric determinations. तो ऐसा डिटर्मिनेशन जो है बेस होता है वे के मेजरमेंट पर उसको रिफर करते हैं ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन. इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एनालिसिस. The constituent to be determined is deposited on the electrode by passing electric current through a suitable electrolytic cell. इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको डिटरमाइन करते हैं डिपॉजिट पर कॉन्स्टिट्यूएंट
जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। और वो कैसे वो डिपॉजिट होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से थ्रू। फॉर एग्जांपल, amount of copper in a given copper sulfate solution can be determined by passing current through the solution and weighing the copper deposited at the negative electrode. For example, अमाउंट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर का अमाउंट है वो डिटरमाइन कैसे होता है, जब उस सोल्यूशन में करंट अप्लाई करते हैं तो जितने भी कॉपर रहते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाता है और फिर उस डिपॉजिटेड कॉपर को वे करते हैं, तो उसकी वजह से पता चलता है कि कितना कॉपर प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। यह इलेक्ट्रिक करंट एक्ट एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का काम करता है। Gravimetric determination of a volatile constituents can be done by heating the sample and recording the loss of weight. तो ग्रामेट्रिक डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और कम टेम्परेचर में ये वेपराइज हो जाता है। तो ऐसे वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट का ग्रामेट्रिक डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके सैंपल को हीट करते हैं और फिर जो लॉस हुआ है उसका वेट रिकॉर्ड करते हैं। ग्रामेट्रिक प्रोसीजर्स आर क्वाइट एक्यूरेट पर आर लेंथी एंड टीडियस। ग्रामेट्रिक प्रोसीजर वैसे भी बहुत एक्यूरेट है लेकिन बहुत ही लेंथी है, काफ़ी लंबा है और बहुत ही टीडियस है। Another group of techniques such as developed in which quantitative analysis was achieved by measuring volume of a solution, hence it is called volumetric analysis। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, टेक्निक जहाँ पे बहुत जल्दी डेवलप किया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ताकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मेजर कर सके, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस to a sample solution of unknown concentration, a reagent solution of known concentration gradually added till the reaction between them is just complete as shown by some indicator। इस टाइप का एनालिसिस जो है जहाँ पे सैम्पल सोल्यूशन अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, रिएजेंट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता रहता है और तब तक ग्रेजुअली ऐड करते हैं जब तक रिएक्शन रहता है उनके बीच में। और ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है वो किसकी वजह से पता चलता है, इंडिकेटर की वजह से। द वॉल्यूम ऑफ द सैम्पल एंड रिएजेंट्स solution are known, the concentration of reagent solution is also known, so the concentration of the given sample solution can be calculated। सैम्पल का वॉल्यूम और रिएजेंट सॉल्यूशंस पता रहता है, रिएजेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी पता रहता है, तो इसलिए सैम्पल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ नोन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक acid solution whose concentration is to be determined is taken in a conical flask and a few drops of phenolphthalein solutions are added as an indicator। For example ये है कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन जिसका हमको मेजरमेंट पता है, उसको कोनिकल फ्लास्क में लिया, उसमें थोड़ा सा फिनोप्थेलिन ऐड किया एज एन इंडिकेटर और सॉल्यूशन ऑफ sodium hydroxide of known concentration is gradually added through the burette until the solution in the flask become just pink। तो एक ब्यूरेट करके रहता है, लंबा सा ग्लास ट्यूब रहता है, उसके अंदर ऐसा टैप जैसा रहता है, तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, ठीक है। उसको ग्रेजुअली ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा और उसमें इंडिकेटर है, तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वही तो पता चलेगा कि रिएक्शन दोनों के बीच में कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंडिकेटर की वजह से वो पिंक कलर का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड इज रिकॉर्डेड एंड फ्रॉम दिस concentration of given hydrochloric acid is calculated। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है उसको ऐड करते कि ऐड कर जो जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम यूज़ किया है या ऐड किया उसको रिकॉर्ड करते, तो उसके
वैल्यू से, उसके नंबर से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो कैलकुलेट कर पाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन इज टर्म टाइट्रीमेट्रिक डिटर्मिनेशन. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन और इसका डिटर्मिनेशन टर्म को बोलते हैं टाइट्रीमेट्रिक डिटर्मिनेशंस. Certain substance under a suitable experimental condition quantitatively liberates a gas. कुछ ऐसे सब्सटेंस है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जहाँ पे क्वांटिटेटिवली गैस के फॉर्म में लिबरेट होता है. The measurement of the volume of liberated gas can be used as a basis for determining the substance produce the gases. तो ऐसे लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा किस तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि वो गैस जो प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को डिटरमाइन कर पाए. ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर को बोलते हैं गैसोमेट्रिक मेथड. फॉर एग्जांपल, सेमी कार्बोजाइड कैन बी डिकम्पोज विद अ लेड पेरोक्साइड एंड लिबरेटेड नाइट्रोजन कैन बी मेजर्ड. जैसे कि सेमी कार्बोजाइड डिकम्पोज होता है लीड पेरोक्साइड के साथ और नाइट्रोजन लिबरेट करता है, तो उस नाइट्रोजन जो लिबरेट होता है उसको मेजर करके हम सैंपल के मेजरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं. Knowing the volume of nitrogen, the amount of semi-carbazide present in the sample solution can be calculated. तो जैसे बोला है कि जितना भी नाइट्रोजन लिबरेट हुआ है उसका वॉल्यूम अगर पता चलेगा तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो सैंपल यूज़ किया था उसके लिए सेमी कार्बाजाइड, उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है सैंपल सोल्यूशन में वो जान लेते हैं. जो हमको पता चलता है कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ, उसका अगर हम मेजरमेंट जान लेंगे, नंबर जान लेंगे, तो हम अपने आप सेमी कार्बाजाइड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सैंपल में वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. Particular component of a gaseous mixture can be absorbed on a suitable absorbent. The decrease in the volume of a gaseous mixture gives the volume of the constituent absorbed. पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है गैशियस मिक्सचर का वो एब्जॉर्ब होता है सूटेबल एब्जॉर्बेंट में. तो गैशियस मिक्सचर का वॉल्यूम कम होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एब्जॉर्ब होता है उसका वॉल्यूम देता है. दिस मेटा एनालिसिस इज कॉल्ड गैस एनालिसिस. इस एनालिसिस को बोलते हैं गैस एनालिसिस. For example, a mixture of oxygen and carbon dioxide gases can be passed through a solution of potassium hydroxide when carbon dioxide alone is adsorbed. जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मिक्सचर उसको पास करते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है. Thus, the decrease in volume of the gaseous mixture will be equal to the volume of carbon dioxide present in the mixture. तो उसकी वजह से गैशियस मिक्सचर का वॉल्यूम कम होता है जो इक्वल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम जो प्रेजेंट रहता है मिक्सचर में. Gravimetric method along with trimetric procedure belong to classical method of analysis. Gravimetric method के साथ trimetric procedure belong करता है classical method analysis का. Trimetric procedure are much simpler, convenient, and hence a large number of titration methods have been worked out for determining a wide variety of inorganic and organic substance. टाइट्रीमेट्रिक प्रोसीजर जो है काफ़ी सिंपल, कन्वीनियंट है और टाइट्रेशन मेथड का लार्ज नंबर है जिसको काम पे लगाते हैं ताकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बहुत से वैरायटी को डिटरमाइन कर सके. इन डायरेक्ट टाइट्रीमेट्रिक मेथड sample of solution is directly titrated with reagent solution. डायरेक्ट टाइट्रीमेट्रिक मेथड में सैम्पल सोल्यूशन जो है डायरेक्ट टाइट्रेट होता है रिएजेंट सोल्यूशन के साथ.
The indirect procedure consists of adding a known excess of reagent and titrating back the unused reagent. इनडायरेक्ट प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें रिएजेंट जो है नॉन एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं और बाद में वापस टाइट्रेट करते हैं अनयूज रिएजेंट के साथ. क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्लासिफिकेशन मेथड. The method of quantitative analysis can be classified from different point of view based on the nature of material under examination, the type of method employed, the amount of desired concentrate in sample material and so on. क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड जो है क्लासीफाई होता है अलग अलग मतलब व्यू के अलग अलग पॉइंट से बेस होता है नेचर का मटेरियल के ऊपर एग्जामिनेशन के अंदर. इस टाइप के मेथड को काम यूज़ करते हैं और डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेट का अमाउंट जो है सैम्पल मटेरियल में वो ढूंढ पाते हैं. मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस 3 टाइप का है. एक है नेचर ऑफ मटेरियल एनालाइज्ड, फिर इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल. मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस 3 टाइप का है. नेचर ऑफ मटेरियल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल. नेचर ऑफ मटेरियल एनालाइज भी 3 टाइप का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल मटेरियल. ठीक है. फिर इंस्ट्रूमेंटल में बहुत सारे मेथड है तो अभी नहीं उसके बारे में सीखेंगे. नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो है क्लासिकल मेथड है. तो क्लासिकल मेथड भी 2 टाइप का है. क्लासिकल वेट एनालिसिस है और एक फिजियोको केमिकल मेथड है. Analysis can be termed organic, inorganic, biochemical, etc. depending on the nature of material analyzed. Analysis जो है वो किस किस टाइप के मटेरियल को एनालाइज करता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिकल, डिपेंड होता है उनके नेचर के ऊपर. Another classification of quantitative analysis is non-instrumental and instrumental. दूसरा वाले के क्वांटिटेटिव एनालिसिस है क्लासिफिकेशन, वो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल. द फॉर्मर इंक्लूड्स ग्रायोमेट्रिक एंड टाइट्रोमेट्रिक प्रोसीजर, whereas later involve use of instruments such as colorimeter, a conductivity meter or a potentiometer and so on. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल के लिए क्या क्लासिफिकेशन है, जो ग्रायोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रोसीजर जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉलोरीमीटर, कंडक्टिविटी मीटर या फिर पोटेंशियोमीटर इन्वॉल्व है. Another classification into classical and physiochemical method of analyzing is also not very sound theoretical, although it is quite useful for the sake of convenience. क्लासिकल और फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन मेथड जो है एनालिसिस के लिए वो इतना अच्छा थियोरेटिकली काम का नहीं है, लेकिन ये एज अ कंफर्ट ये यूज़फुल है. According to this classification, grayometric and titrometric methods are termed chemical method, though they are based on measurement of physical property, V's, weight and volume. तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्रायोमेट्रिक टाइट्रोमेट्रिक मेथड केमिकल मेथड है जो बेस है फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के ऊपर, ना कि केमिकल मेथड. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वे और वॉल्यूम को मेजर करते हैं. मेथड ऑफ एनालाइजिंग बेस्ड ऑन सच physical property as potential, conductance, current strain and optical rotation etc. are generally referred to as physiochemical method. मेथड जो बेस्ड है ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़
जैसे कि पोटेंशियल, कंडक्टेंस, करंट, स्ट्रेंथ, ऑप्टिकल रोटेशंस। देखिए ये मेथड का एनालिसिस इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं फिजिको केमिकल मेथड। द क्लासिकल केमिकल analysis, which consists of gravimetric and titrometric method, is also known as wet analysis. Classical chemical method analysis जो है gravimetric और titrometric method को wet analysis भी बोलते हैं. There are certain other procedures which are based on matter energy interaction such as colorimeter determination which involve passage of light a form of energy through solution of the substance to be determined which is matter. दूसरे प्रोसीजर्स जो बेस्ड है मैटर एनर्जी इंट्रैक्शन में, जैसे कोलोमीटर डिटर्मिनेशन जहाँ पे लाइट का पैसेज जो एनर्जी फॉर्म करता है उस पर इन्वॉल्व है, सब्सटेंस का सोल्यूशन जो डिटरमाइन होता है इस मैटर में. द मेथड ऑफ quantitative analysis can be classified on the basis of the size of sample for determination. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड के लिए सैम्पल का साइज के ऊपर बेस्ड है डिटर्मिनेशन के लिए. द टर्म माइक्रो एनालिसिस इज यूज व्हेन द डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व 0.1 ग्राम और मोर ऑफ द सैम्पल. तो मैक्रो एनालिसिस तभी होता है जब सैम्पल जो है 0.1 ग्राम या उससे ज़्यादा होता है. इफ़ द अमाउंट ऑफ द सैम्पल इज अप्रॉक्सीमेट 0.01 to 0.1 ग्राम द मैटर इज कॉल्ड सेमी माइक्रो एंड फॉर सैम्पल वेइंग 0.001 to 0.01 ग्राम. तो सैम्पल का अमाउंट if the amount of sample is approximately 0.01 to 0.1 gram, the method is called semi-micro. अगर सैम्पल का अमाउंट अप्रॉक्सीमेट रहता है 0.1 से लेकर 0.1 ग्राम तक, उस मेथड को बोलते हैं सेमी माइक्रो. फॉर सैम्पल वेइंग 0.01 to 0.01 ग्राम, द टर्म माइक्रो मेथड. अगर सैम्पल का वे 0.01 से लेकर 0.01 ग्राम तक है तो उस टर्म को बोलते हैं माइक्रो मेथड. अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस इन्वॉल्व सैम्पल कंटेन लेस देन 0.001 ग्राम ऑफ मटेरियल. अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में सैम्पल जिसमें 0.001 ग्राम का मटेरियल रहता है. सम ऑथर हैव यूज्ड दिस टर्म सब माइक्रो एनालिसिस. कुछ ऑथर ने इसको सब माइक्रो एनालिसिस भी बोल के रखा है. certain procedures have been described for analyzing quantities smaller than those handled in ultra micro analysis. This constitutes what is known as nano analysis. कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिसने क्वांटिटी को एनालाइज किया है जो काफ़ी छोटा था कंपेयर टू अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस से, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं नैनो एनालिसिस. मतलब 0.001 ग्राम से भी छोटा जो है वो वो अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस है, उससे अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस से भी छोटा है नैनो एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू अनदर क्लासिफिकेशन, macro methods are those in which sample contain more than 2 milli-equivalent MEq of the material and 0.1 normal solution are employed in the determination. तो दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैक्रो मेथड जो है जिसके सैंपल में 2 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा मटेरियल रहता है और 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन रहता है determination करने के लिए. In semi-micro method, the sample contain about 1 MEq sample of substance 0.05 to 0.1 normal solution used in a stoichiometric determination. तो सेमी माइक्रो मेथड जहाँ पे सैम्पल में 1 MEq सब्सटेंस है और
0.05 से लेकर 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है वो यूज़ होता है टाइट्रोमेयर डिटर्मिनेशन के लिए. एंड द amount of the substance is around 0.1 MEq. The method is used is called micro method. जब 0.1 MEq अमाउंट से भी कम सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो मेथड. दिस जनरली इन्वॉल्व यूज ऑफ 0.01 नॉर्मल रिएजेंट सोल्यूशन. इसमें 0.1 नॉर्मल रिएजेंट सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है.